تو جار مجرور سے مل کر یہ متعلق کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ متعلق. کس کے متعلق ہوگا؟ اس فعل نظر تو فعل کے. نظر تو فعل اپنے فاعل انا ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم نے کتاب دروس اللغت العربیہ سے 3 سبق مکمل پڑھ لیے تھے. آج ہم سبق نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں. سبق نمبر 3 میں ہم نے بطور خاص حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کو سمجھا تھا کہ جب کسی اسم کے شروع میں حروف قمریہ آتے ہیں اس کا تلفظ کیسے ہوتا ہے اگر الف لام اس کے شروع میں لائیں. ایسے اگر حروف شمسیہ کسی اسم کے شروع میں ہو اس کے پہلے آپ الف لام لائیں اس کا تلفظ کیسے ہوگا. تفصیل کے ساتھ سبق نمبر 3 میں ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم حروف جارہ کے تعلق سے پڑھیں گے. حروف جارہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حروف جارہ انہیں جر دینے والے حروف، حروف جر دینے والے حروف، زیر دینے والے حروف عربی میں کتنے ہیں؟ 17. اس سے پہلے آپ نے چھوٹی کتاب میں 11 پڑھے ہوں گے، لیکن جو اصل ہے جن کی تعداد کل کتنے ہیں؟ 17 ہے. وہ کیا کیا ہے؟ با، تا، کاف، لام، واو، مز، مزخلا، رب، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا. یہ 17 حروف جو ہے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. یہ ہمیشہ اسم کے شروع میں آتے ہیں. کس کے شروع میں؟ اسم کے شروع میں آتے ہیں، نون کے شروع میں آتے ہیں. فعل اور حرف کے شروع میں کبھی حروف جارہ نہیں آتے. یہ 17 حروف جو ہے کس کے شروع میں آتے ہیں؟ ہمیشہ اسم کے شروع میں آتے ہیں. اور جس اسم کے شروع میں آتے ہیں اس کو مجرور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجرور. یعنی اس کے آخر میں زیر ہوتا ہے. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3 آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو جار مجرور ہوتے ہیں نا یہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. کسی کے پہلے آپ سمجھے پھر میں بورڈ میں سمجھا دوں گا. کسی کے متعلق ہوتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ یہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، ہے نا، شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، مصدر کے متعلق ہوتے ہیں. آج آپ یاد رکھیے کہ جہاں بھی آپ کو جار مجرور نظر آئے گا نا تو 8 چیزوں کے متعلق ہوں گے. کتنے چیزوں کے؟ 8 چیزوں کے. وہ 8 چیزیں ہم آگے پڑھیں گے. فی الحال جو ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہے تو اسی پر آپ توجہ دیجئے کیونکہ اس کتاب میں صرف انہی تینوں کا بیان ہم پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جس کے متعلق ہوتے ہیں نا اس کو متعلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ متعلق. یعنی لام پر زبر. یعنی خود حروف جار اور مجرور کو متعلق کہتے ہیں اور جس کے متعلق ہوتے ہیں نا اس کو متعلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. دیکھیے مثلا رأیت، اس کو چھوڑ دیا، آپ نظر تو لیجئے تاکہ صلاح آپ کے ذہن میں رہے. نظر تو المسجد، نظر تو مسجد. اس کو ہم نے سمجھنا صرف اس چیز کو. ترکیب دیکھیں، نظر تو فعل، میں نے مسجد کی طرف دیکھا، میں نے تو نظر تو فعل، انا ضمیر اس کے اندر فاعل. تو جانتا ہے اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، انا ضمیر اس کے اندر فاعل. ہر فعل کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ضمیر ہوتی ہے نا، وہ اس کا فاعل ہوتا ہے. اگر فاعل لفظوں میں نہ ہو تو اس کے اندر ضمیر فاعل بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں نظر زید الی المسجد، تو نظر فعل، زید فاعل. فاعل لفظوں میں ہے نا، لیکن یہاں لفظوں میں نہیں ہے تو اس کے اندر ضمیر کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو نظر تو فعل، انا ضمیر فاعل، الی حرف جر المسجد مجرور. تو یہ جو ہے نا جار مجرور، اسی کو سمجھنا ہم نے. تو جار مجرور سے مل کر یہ متعلق کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ متعلق. کس کے متعلق ہوگا؟ اس فعل نظر تو فعل کے. نظر تو فعل اپنے فاعل انا ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ
खबरिया होगा। ठीक है, इसी तरीके से कभी ये मुताल्लिक होता है शिबह फेल के, किताब में मिसाल आएगी। कभी ये मुताल्लिक होता है किसके, मस्दर के, किसके, तो इसको मुताल्लिक कहते हैं और इसको मुतअल्लिक क्या कहेंगे, मुतअल्लिक और मुतअल्लिक। ये समझे आप? देखिए आगे आप एक बात याद रखिए, और आप अगर कोई भी इसम हो ना, कोई भी इसम मुतलक इसम, तो हमेशा वो मरफू होगा। क्या होगा? मसलन अल कलम, क्या, अल किताबु, अल कुर्रासतु, अल कलंसुअतु, अल मिरवाहतु, कोई भी अगर इसम होगा ना आपके सामने तो मरफू होगा। क्या होगा? तो फिर आपको बताया है अलिफ लाम होगा तो फिर सिर्फ हरकत आएगी, अलिफ लाम नहीं होगा तो तनवीन आएगी। मसलन अल कलमु या कलमुन, अल मिरवाहतु या मिरवाहतुन, अल किताबु या किताब। तो जब इसके शुरू में आप हुरूफ जारा में से कोई हर्फ आएगा तो अब क्या बनेगा? वो मजरूर। उसके नीचे क्या आएगा? जेर। ये भी याद रखिए, जेर कहीं लफ्जों में होगा और कहीं मानवी तौर पर। इसी मिसाल को लीजिए आप, हमने यहाँ समझा इसको, नजर तो इलल मस्जिद, यहाँ तो जेर आपको नजर आ रहा है ना। यहाँ हम अगर लिखते हैं नजर तो इलल मुस्तशफा, मुस्तशफा। अब देखिए यहाँ आपको जेर नजर नहीं ना आया, या नजर तो इलल मूसा, नजर तो इला ईसा है ना। तो जो मजरूर होगा कहीं तो लफ्जी तौर पर अगर मुअरब है, अगर मबनी है तो फिर मानवी तौर पर क्या होगा? वो महल्लन मजरूर होगा। क्या कहते हैं उसको? महल्लन मजरूर। आगे हम पढ़ेंगे तफसील से इसको। अब किताब में आप देखिए, तो खुलासे के तौर पर आप याद रखिए कि हुरूफ जारा कितने हैं? 17। ये सिर्फ इसम पर दाखिल होते हैं। किस पर? सिर्फ इसम पर दाखिल होते हैं। जिस इसम पर दाखिल होते हैं उसको क्या कहते हैं? मजरूर। उसके आखिर में जेर होता है। फिर वो इसम अगर मुअरब है तो लफ्ज़ में आपको जेर नजर आएगा, इसे नजर तो इलल मस्जिद। और अगर वो इसम मबनी है तो फिर आपको महल्लन मजरूर मानना होगा। नजर तो इलल मुस्तशफा, नजर तो इला मूसा, नजर तो इला ईसा। तीसरी बात हमने पढ़ी कि जार मजरूर को मुतअल्लिक करना जरूरी होता है। जार मजरूर को, तो ये मुतअल्लिक जिसके होगा उसको क्या कहते हैं? मुतअल्लिक। क्या कहते हैं उसको? मुतअल्लिक। और कभी तो ये फेल के मुतअल्लिक होगा, कभी शिबे फेल के मुतअल्लिक होगा, और कभी मस्दर के मुतअल्लिक होगा। कुल कितने चीजों के मुतअल्लिक होते हैं? ये 8 चीजों के मुतअल्लिक। बाकी बयान आगे हम पढ़ेंगे। अब किताब में आप देखिए, अद-दर्सुर राबिउ मौसूफ सिफत है। पीछे बताया ना आपको अद-दर्सुस सालिस, अद-दर्सुस सानी, अद-दर्सुल अव्वल में। तो अद-दर्सुर राबिउ चौथा सबक, चौथा सबक। तो मुरक्कब तौसीफी है, कई मरतबा बताया आपको। जुमला कौन सा है? ये नाकिस। कौन सा? इसको कामिल बनाने के लिए क्या कहना पड़ेगा आपको? हाजा अद-दर्सुर राबि, ये चौथा वाला सबक है। फिर बनेगा मुब्तदा हाजा और अद-दर्सुर राबि मुरक्कब तौसीफी होकर खबर। अल बैतु, मैंने कहा कि कोई भी इसम तन्हा आपको कहीं नजर आए तो कैसे होगा? वो मरफू होगा। क्या होगा? यानी उसके शुरू में कुछ नहीं है तो मरफू होगा। अगर अलिफ लाम है तो फिर सिर्फ हरकत होगी, यानी पेश होगा। अगर अलिफ लाम नहीं है तो फिर तनवीन होगी पेश वाली। ठीक है, तो अल बैतु से क्या बन गया? फिल बैती, फिल फी हर्फ जार, अल बैती मजरूर। अल मक्तबु किसको कहते हैं? मक्तब। हाँ, अलल मक्तबी किस पर? मेज पर। तो अला हर्फ जार, अल मक्तबी। अल मस्जिदु फिल मस्जिद। आपको गौर करना, पहले इसम जो मरफू था ना वो मजरूर क्यों हो गया? जब मुतलक इसम, उसको याद रखिए, आप कायदा लिखिए कि जब भी कोई इसम मुतलक हो, उसके शुरू में कुछ नहीं है तो क्या होगा? वो मरफू होगा। ऐसे अस्सरीरु, देखिए मरफू है ना, अलस्सरीर, अलस तरकीब ऐसे करेंगे आप, अला हर्फ जार, अस्सरीर मजरूर। पीछे आपको बताया था मैंने, आपको याद होगा, सवाल करने के लिए कुछ हरूफ है और कुछ इसम है ना। हरूफ कितने थे? हमजा और हल।
अ और हल। और अस्मा कितने थे? 10, उसमें से एक आईना भी है। क्या है? आपको ये भी बताया था कि जो हुरूफ इस्तिफाम होते हैं या अस्मा इस्तिफाम होते हैं, सदर कलाम को चाहते हैं। किसको? सदर कलाम का मतलब शुरू में, यानी पहला आना चाहते हैं। जैसे इंग्लिश में भी अंग्रेजी में भी जो इस्तिफामे होते हैं ना हुरूफ, वो कहाँ आते हैं? जैसे व्हाट है, व्हेन वगैरह वगैरह हुरूफ जो है शुरू में आते हैं। ऐसे अरबी में भी जो हुरूफ इस्तिफाम है, अस्मा इस्तिफाम कहाँ आते हैं? पहले आते हैं। उसको कहते हैं अरबी में सदर कलाम। क्या कहते हैं? सदर कलाम। देखिए, आइन मुहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद कहाँ है? पूरा जुमला है ये, लेकिन तरकीब कैसे होगी? जो पीछे आपको बताया था, आइन इसमें इस्तिफाम खबर मुकद्दम, मोहम्मदुन मुब्तदाए मुअख्खर, ऐसी तरकीब करनी है। ये जुमहूर की राय है। लोग वैसे भी करते हैं, हर्फ इस्तिफाम मुब्तदा नहीं, आइन इसमें इस्तिफाम मुब्तदा और मोहम्मदुन खबर, लेकिन असल तरकीब वही है, मुकद्दम और मुअख्खर। और ये भी बताया आपको कि अ और हल कभी मुब्तदा नहीं बन सकते, कभी खबर, क्योंकि वो हरफ है। क्या? मुब्तदा खबर के लिए क्या होना जरूरी है? इस्म होना जरूरी है। आगे देखिए, कहते हुआ फिल गुरफती, वो कहाँ है? कमरे में। यहां तरकीब कैसे कर रहे हैं? हुआ इसमें इशारा, हुआ इसमें जमीर मुब्तदा, इसमें जमीर मुब्तदा, फी हर्फ जर अल गुरफती मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुतअल्लिक किसके होगा? शिबे फेल के। किसके? मैंने कहा यहाँ तो फेल के होगा, या शिबे फेल के होगा, या मजदर के होगा। तीन चीजें अभी तक पढ़ी ना हमने। इस्म के जमीर के मुतअल्लिक कभी नहीं होता है। तो फी हर्फ जर अल गुरफती मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुतअल्लिक होगा। आपको खुद निकालना है जहन से। यानी मोहम्मद किसमें? कमरे में, तो मौजूद है ना। वाकिफुन खड़ा है, बैठा है, जालिसुन जो भी आप चाहें आप यहाँ महजूब मानकर उसके मुतअल्लिक इसको कर सकते हैं। मसलन हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में मौजूद है, वो कमरे में खड़ा है, वो कमरे में बैठा है। तरकीब देखिए, हुआ जमीर मुब्तदा, फी हर्फ जर अल गुरफती मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुतअल्लिक किसके होगा? शिबह फेल मौजूद उनके। किसके? या वाकिफ उनके, या जालिस उनके। शिबह फेल अपने फाइल हुआ जमीर और मुतअल्लिक से मिलकर खबर। क्या बनेगा? तो आप तरकीब इसको जहन में रखिए, आगे आप खुद करते जाएंगे। फिर ये समझ में आपको आया? फिर देखिए तरकीब इसकी, हुआ मुब्तदा, फिल गुरफती जार मजरूर से मिलकर मुतअल्लिक होगा किसके? जालिसन, पहले बोलो वो फेल, फिर जालिसन शिबे फेल के, वाकिफुन शिबे फेल के, मौजूदुन शिबे फेल के, जैसे आपको अच्छा लगे। फिर शिबे फेल अपने फाइल और मुतअल्लिक, यानी फिल गुरफत मुतअल्लिक से मिलकर क्या बनेगा? खबर। वअइन यासिर, यासिर कहाँ है? तरकीब हुबू ऐसी है, कहते हुआ फिल हम्माम, वो किसमें है? हम्माम में खड़ा है, बैठा है, मौजूद है। वअइन आमना, तो आमना कहाँ है? हिया फिल मतबखी। तरकीब आसान है ना, लेकिन ख्याल रखना आपने शिबे फेल में आएगा मौजूदतुन के। क्यों? मुअन्नस है ना। या जालिसतुन, वाकिफतुन, मुअन्नस का ख्याल रखते हुए आपको शिबे फेल भी लाना है। अइनल किताब, किताब हुआ अलल मक्तब, तो यहां भी आप तरकीब हुआ ऐसे करेंगे। वअइन अस्साअ, घड़ी कहाँ है? कहते ही अलस सरीर, वो कहाँ है? इन्हें गोया कि अलस सरीरी मौजूदतुन, अलस सरीरी चारपाई पर मौजूद है, चारपाई पर। अल मतबख किसको कहते हैं? किचन को। यहाँ शक्ल भी दी है। तमारीन किसकी जमा है? तमरीन की जमा तमारीन। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालात के जवाबात दीजिए। मैंने आपको इशारतन किनायतन बताया था तालील के बगैर। अजिब ये किससे है? बाब इफाल से। अजाब युजीबु से। किससे? इसके माना थे जवाब देना। क्या माना? इसके जो हरूफ मादा रूट वर्ड्स है ना, वो क्या क्या है? जीम वाव बा, जीम वाव। अगर आप तलाश करते हैं डिक्शनरी में तो जीम वाव बा आप तलाश करेंगे।
समझ में आया? तो असल अजाब युजीबु से बनाए अजिब फेले अम्र है ये, कितने जवाब दीजिए आने वाले सवालात के। तो अनिल अस्इलतिल आतियति पर भी आपने गौर करना है। अन हरफे जर है ना। अल अस्इलतिल आतियति मुरक्कबे तौसीफी होकर मजरूर, मुरक्कबे इसलिए तो जेर है ना इस पर। अस्इलतिल आतियति, कोई पूछ सकता है आपसे कि जेर क्यों है, आप कहेंगे हरफे जर की वजह से दोनों मौसूफ सिफत है, मुरक्कबे तौसीफी होकर मजरूर। तो आप जवाब दीजिए अइनल किताबु, किताब कहाँ है? तो क्या कहेंगे आप? अल किताबु अलल मक्तबी, है ना। ये अल किताबु अलल कुर्सी, अल किताबु अलल हकीबती। तो जो भी आपके सामने होगा आप उसको जवाब दीजिए। अइना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? तो क्या आएगा? हुआ फिल या मोहम्मदुन फिल मस्जिद, मोहम्मदुन। अइन अस्सा, घड़ी कहाँ है? अभी पढ़ा आपने, अस्साअतु अला सरीर। अइन यासिर, यासिर कहाँ है? तो यासिरुन फिल हम्माम। अइन आमिना, आमिना कहाँ है? हिया फिल, पीछे देखना नहीं किताब में, आपका इम्तिहान ले रहे कितना आप समझ रहे हैं, देखकर बताएंगे फायदा नहीं होगा। आमिनतु फिल गुरफा, क्या आमिना कहाँ कमरे में है? तो जवाब क्या देना आपको? ख्याल रखना आपको लड़की, यह कौन सा है? हर्फ इस्तिफाम है ना। सवाल जब हर्फ इस्तिफाम अ से हो, हल से हो, तो जवाब में क्या कहना है? मुस्बत की सूरत में नाम, अजल, जैरी, और मनफी की सूरत में ला। तो आप क्या जवाब देंगे? ला हिया फिल मतबख, ला रुक के उसके बाद फिल मतबख। अयासिरुन फिल मतबख, के यासिर मतबख में है? ला हुआ फिल मस्जिद। मन फिल गुरफत, मन ये भी इसमें इस्तिफाम से मन है ना, जैसे माँ मन। तो मन फिल गुरफत, कमरे में कौन है? तो क्या जवाब होगा? यासिरुन फिल गुरफत, मोहम्मदुन फिल, तरकीब वही जहन में रखनी आपको है। वमन फिल हम्माम, हम्माम में कौन है? यासिरुन फिल माज़ा अलल मक्तबी, मकतब पर मेज पर क्या है? तो क्या आएगा? अल किताबु। माज़ा अलल सरीर, चारपाई पर अस्सातु अलल सरीर। इक़रा वक्तुब, कई मर्तबा तफसील से पढ़ चुके हैं। इक़रा किससे बना? उक्तुब किससे बना? लेकिन यहाँ हमजा पढ़ा नहीं जा रहा इसलिए कि ये बीच में आ रहा है ना। मा ज़ब्त अवाखिर कलिमात, कलिमात के आखिरी हर्फ के एराब के साथ, कलिमात के आखिरी हर्फ के, ताकि पता चले कि किस हालत में, हालत रफी में है, हालत नस्बी में, हालत जर्री में। तो आपको अल मदरसतु इसम जब मुतलक आए किस हालत में होता है? हालत रफी में। देखिए अल मदरसतु मुतलक है, इसके शुरू में कुछ नहीं है, लेकिन अब हो गया फिल मदरसत। क्या हो गया? फिल बैती अल बैतु, अल गुरफतु, अल हम्मामु, फिल मतबखी। कलिमात आसान है ना, पढ़े हुए हैं। अल मक्तबु अलल मक्तबी, अलल कुर्सी, अस्सरीरु अलल किताबी फिल मस्जिद। इक़रा वक्तुब, पढ़ और लिख। तो यहाँ बगैर एराब की मशक आपको दी है, ये पढ़ना आपको है, बार बार पढ़ेंगे ताकि जो कवायद आपने पढ़े उनका इस्तेमाल करने का तरीका आपको आ जाए। अत्तालिबु फिल जामिआ, जामिअती, एराब जाहिर करना है, अभी आपको एराब जाहिर करने की जरूरत है। तो अत्तालिबु फिल जामिअती, तालिब इल्म कहाँ है? तरकीब कैसे होगी? बिल्कुल आसान। अत्तालिबु मुब्तदा, फिल जामिअती जार मजरूर से मिलकर मुतल्लिक होगा कहाँ? मौजूद, किसके? यानी जामिया में मौजूद है, तो फिर शिबा फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर क्या बनेगी? खबर। और रजुल फिल मस्जिद, आदमी कहाँ है? तरकीब ऐसी होगी, मौजूद शिबह फेल। अयन ताजिर, ताजिर कहाँ है? हुआ फिर अल कलम अलल, कलम कहाँ है? नहीं, पढ़ने का तरीका बता रहे हैं आपको कि आपको एराब समझ में आया कि नहीं। अयन ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ है?
हिया फिल गुरफती। अइनल वरक, वरक कहाँ है? हुआ अलल, समझ में आ रहा है ना आपको? आसान है। अइनल मुदर्रिस, हुआ फिल फस। तरकीब कैसे होगी? वही मुब्तदा मुअख्खर और खबर मुकद्दम। यहाँ बिल्कुल सीधी तरकीब, हुआ फिल फस्ल मौजूदुन, हुआ फिल फस्ल नशिबह फेल। उसके बाद कि अइन यासिरुन, अइन यासिरुन पढ़ना है इसको। यासिर कहाँ है? हुआ फिल मिरहाज, वो कहाँ है? मिराज कहते हैं वो तख्ता जिस पर कपड़े वगैरह धोते हैं ना, बाथरूम को भी कहते हैं, लेकिन असल है वो तख्ता जिस पर कपड़े धोते हैं पहले जमाने में, अब तो नहीं है वो तख्ते। अश्शम्सु वल कमरु फिस समाई, सूरज और चांद कहाँ है? आसमान में। तो अश्शम्सु वल कमरु मातूफ, मातूफ वाले से मिलकर क्या बनेगा? मुब्तदा। फिस समाई मौजूदुन, फिस समाई, समझ में आ रही तरकीब आपको? मन फिल फस्ल, क्लास में कौन है? तो क्या कहेंगे आप? ज़ैदुन फिल फस्ल, ज़ैदुन फस्ल। उसके बाद जो आपके सामने कुछ अस्मा दिए, एक तरफ तो मुज़क्कर है, दूसरी तरफ मुअन्नस है। याद रखिए अरबी में जो मुअन्नस के नाम होते हैं ना, अक्सर और बेशतर क्या होते हैं? गैर मुनसरिफ। क्या होते हैं? मुनसरिफ कहते हैं जिस पर तमाम हरकत आती है, ठीक है, तनवीन भी आती है। गैर मुनसरिफ कहते हैं जिस पर कसरा और तनवीन ना आए, कसरा और। तो अरबी में जितने मुअन्नस के नाम होते हैं ना, अक्सर और बेशतर उन पर तनवीन नहीं आती, तनवीन। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये नहीं आप समझना कि जितने भी मुज़क्कर के नाम होंगे सब पर तनवीन आएगी, ऐसा भी नहीं है। मसलन अगर किसी मुज़क्कर का नाम ऐसा हो जिसके आखिर में ता हो, क्या हो? तो उस पर भी तनवीन नहीं आएगी। मसलन हुज़ैफा है ना, रखते ना मुज़क्कर का नाम भी, रखते ना हुज़ैफा नाम। इसी तरीके से तलहा है, उसामा है। ऐसे ही याद रखिए कि अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ और नून हो, क्या हो? उस पर भी तनवीन नहीं आएगी। मुज़क्कर का नाम जैसे इमरान, उस्मान, अदनान। तफसीली बयान हम गैर मुनसरिफ के बयान में पढ़ेंगे। इतना याद रखिए कि अरबी में जितने मुअन्नसों के नाम होते हैं ना, उन पर क्या नहीं आती है? तनवीन उन पर। और इसी तरीके से अगर किसी मुज़क्कर का नाम ऐसा है कि उसके आखिर में क्या है? बोलता है, अलिफ और नून है, उस पर भी तनवीन। इतना फिलहाल आप याद रखिए, ठीक है। जैसे मोहम्मदुन आमिनतु है ना, खालिदुन ज़ैनबु, हामिदुन फातिमतु, यासरुन यासिरुन मरियमु, अम्मारुन सईदुन, अलीयुन सफियतु, अब्बासुन। इतना आप याद रखिएगा। फिलहाल तफसीली बयान हम मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इक़रा वक्तु, इक़रा मा ज़ब्त अवाखिर कलिमात। देखिए इसी तरकीब पीछे करके बताया आपको सबक नंबर 3 में। तो कलिमात के आखिरी हर्फ के एराब के साथ पढ़िए भी और लिखिए भी। लिखना भी आपको और पढ़ना भी है, आसान है। पढ़िए मेरे साथ। हामिदुन ज़ैनबु आमिनतु अम्मा सईदुन अलीयुन, तनवीन के साथ। खालिदुन, आगे देखिए बा पार्ट में क्या है। यहाँ पर मिन और इला की मश्क है। किसकी? मिन और। बहुत आसान है। मिन के माने आते हैं से और इला के माने तक। मिन के माने क्या है? इसे त्राल से श्रीनगर तक, त्राल से श्रीनगर तक। तो से के लिए क्या आता है अरबी में? मिन। और तक के लिए क्या आता है? तो अल बैतु मिनल बैति, अल मस्जिदु। इसको जल्दी पढ़ते हैं, बहुत आसान है। इतना याद रखिए आप कि शहरों के जो नाम होते हैं ना, शहरों के नाम, उन ऐसे जो आलम होते हैं इंसानों के नाम, उनके शुरू में अलिफ लाम नहीं आता। अलिफ लाम नहीं आता। अगर कहीं आता है ना तो उसको कहते हैं शाज़ो नादिर। क्या कहते हैं? शाज़ो नादिर का मतलब होता है बहुत कम, और वो खूबसूरती पैदा करने के लिए आते हैं। किसके लिए? जैसे अल हसन वल हुसैन पढ़ते हैं ना खुतबे में, अल हसन। इसको याद रखिए आप। ऐसे किसी शहर के नाम के शुरू में अलिफ लाम आप देखें तो वो शाज़ो नादिर होता है, बहुत कम होता है,
खूबसूरती पैदा करने के लिए। जब अलिफ लाम आएगा तो उस पर ज़ेर भी फिर आएगी। क्या आएगी? मसला आपको कहना कि मैं मसलन कोई इंसान पाकिस्तान का रहने वाला है, क्या कहेगा वो? अना मिन पाकिस्तान। क्या कहेगा? उससे आप कहते हैं मिन अइन अंत, आप कहां से ताल्लुक रखते हैं? वो जवाब में क्या कहेगा? अना मिन पाकिस्तान, अना मिन। देखिए पाकिस्तान के शुरू में मिन है ना, फिर भी आप क्या पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान। क्या पढ़ रहे हैं? लेकिन अगर आप यूं पढ़ेंगे अना मिनल अलिफ लाम के साथ, अना मिनल पाकिस्तानी, फिर इस पर ज़ेर भी आएगा। क्या आएगी? ज़ेर भी। इसको याद रखिए, कायदा है ये। अल मुदर्रिस, इस सवाल जवाबात हो रहे हैं। मिन अइन अंत, अना मिनल याबानी। देखिए वही बात अभी जो बताया आपको मैंने, तो पहले था मिन याबाना, क्या था? मिन याबाना। लेकिन अलिफ लाम इस्तेमाल किया तो वो अब याबानी भी हो गया, वरना इस पर ज़ेर नहीं आता, ज़ेर नहीं आता। अल मुदर्रिस, उस्ताद पूछ रहा है वमिन अइन अम्मारुन, अम्मार कहां से? कहता हुआ मिन सीन, वो कहां से? चीन से। उस्ताद कह रहा है वमिन अइन हामिदुन, हुआ मिनल हिंद। आसान है, तर्जमे की जरूरत नहीं। अइन अब्बास, अब्बास कहाँ है? खरजा मिनल फस्ल, खरजा मिनल क्लास से निकला। देखिए पहला जुमला फेलिया इस किताब में। मैंने बताया था आपको इस किताब में सारे के सारे जुमले क्या है? जुमला इस्मिया, लेकिन एक जुमला आ गया, जुमला फेलिया, छोटा सा वो भी है। अइन ज़हबा, दूसरा भी आ गया। ज़हबा इलल मुदीर, कहाँ गया? मुहतमिम के पास। तरकीब आसान है, फेल फाइल और जार मजरूर है ना। वअइन ज़हब अली, अली कहाँ गया? ज़हब इलल मिरहाज, कहाँ गया? बाथरूम की तरफ गया, वॉशरूम की तरफ गया। कई माने इसके आते हैं। तमारीन, इसको पूरा पढ़ लेते हैं आज। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियत, आने वाले सवालात की जवाबात दीजिए। मिन अइन अंत, आसान है ना। अंत मिनल फिलिपीन, क्या आप कहां से हैं? देखिए यहां भी अलिफ लाम आ गया तो अब मिनल फिलिपीनी भी पढ़ सकते हैं आप, है ना। अलिफ लाम आ गया ना, फिलिपानो कहते हैं अरबी में फिलिपीन। मन मिनसीन, चीन से कौन है? तो जवाब में आप खुद देंगे कौन? ज़ैदुन मिनसीन, ज़ैदुन। मिन अइन हामिद, हामिद कहां से? तो हामिदुन मिन मिनल हिंद, हामिदुन मिनल हिंद। अइन ज़हब अब्बास, खरज मिनल, अभी पढ़ा हमने। अज़हब अली इलल मुदीर, तो क्या आएगा? नअम, आ है ना, आ, तो नअम ज़हब अली इलल, या ला ज़हब अली इलल मुदीर। इक़रा वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात, पढ़िए लिखिए कलिमात के आखिरी हर्फ के एराब के साथ। तो आसान है। अल गुरफतु मिनल गुरफती, पढ़िए आप साथ। मिनल हम्मामी अल मिरहाजु इलल अल याबानु अल फिलिपीन, ठीक। अल फिलिपीनो मिनल हिंदी इलस। इक़रा वक्तुब मिन अइन फातिमा, फातिमा कहां से है? इन्हें कहां से उसका ताल्लुक है? हिया मिनल। देखिए आप अरबी में कोई तलाश नहीं कर सकते आपको नया लफ्ज ताल्लुक कहां से, सिर्फ इतना मिन अइन अंत, आप कहां से ताल्लुक रखते हैं, इतना आपको कहना। अना मिन त्राल, अना मिन पुलवामा, अना मिन कश्मीर, इतना काफी है। खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ल व ज़हब इलल मुदीर, खरजल मुदर्रिसु, उस्ताद क्लास से निकला और कहाँ गया? मुहतमिम की तरफ गया। ज़हबत ताजिर इलल दुकान, आसान है ना। ताजिर कहाँ गया? याद रखिए ज़हब यज़हब के सिले में इला हमेशा आता है ना, ज़हब यज़हब इला के बगैर इस्तेमाल नहीं होता है। खरज हामिदुन मिनल गुरफा, हामिद कहां से निकला? व ज़हब इलल हम्माम, कहां गया? मन खरज मिनल फस्ल, सवाल है कौन निकला क्लास से? जवाब खरज तालिबु मिनल मदरसती व ज़हब इलल सूक, तालिब इल्म मदरसे से निकला और कहां चला गया? बाजार की तरफ चला गया। खदीजतु मिनस सीन व खालिदुन मिनल याबान, खदीजा का ताल्लुक कहां से है? और खालिद का ज़ फेल अम्र है, इसके हुरूफ माद्दा रूट वर्ड्स क्या क्या है? वाव ज़ाद ऐन वज़अ यज़अ, ठीक है, रखना।
मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फेल के ऐन और लाम कलमे की जगह पर हरफ इल्लत आए, याद है आपको हरफ, तो वो फेल किस बाब से होगा? बाब फतह यफ्तहु से। किससे? याद रखिए इसको, ऐन कलमे और किसकी जगह? लाम कलमे की जगह पर अगर हरफ इल्लत में से कोई हरफ आए तो किससे होगा फिर वो? फतह यफ्तहु से, अक्सर और बेशतर। हरफ इल्लत नहीं बताया था आपको, हुरूफ हल्की में से, आपने भी सुन लिया और ऐसे कबूल कर लिया इसको। हुरूफ हल्की में से आए, क्या आए? तो किससे होगा? बाब फतह यफ्तहु से। तो कहते हैं ज़ा मिनल फराग, ज़ा फिल फराग, खाली जगहों में रखिए, फीमा यली, जो आ रहे हैं हुरूफ इल्लत, ये हुरूफ जार्रा, हर्फ जर्रिन मुनासिबन, मुनासिब हर्फ जर, खाली जगहों में मुनासिब हर्फ जर को रखिए, मुनासिब हर्फ जर को रखिए। यानी मिन, इला, फी, अला, ये 4 हुरूफ जारा दिया आपको, इनको आपने अगले जुमलों में रखना है कहीं पर जो मुनासिब होगा। अल किताबु अलल, अत्तालिबु ज़हब हामिदुन, खरजल मुदीरु मिनल, हाँ बोलिए, ज़हब मुहम्मदुन इलस्सीन मिनल, आप ये ज़हब मुहम्मदुन मिनस्सीन इलल याबा, ठीक है। चीन से कहाँ गया? जापान की तरफ चला गया। अल कलिमातुल जदीदतु, नए कलिमात, आपके लिए नहीं है, नए बच्चों के लिए, आपके लिए सब आसान है। तो आगे भी इन्होंने हुरूफ जार के बारे में कहा, फी, अला, मिन, इला, मिन हुरूफिल जर, मिन हुरूफिल जर देने वाले हुरूफ में से ये 4 हर्फ भी, 4, तो कुल कितने हुरूफ है? 17 हुरूफ है। जिस पर दाखिल होते हैं उसको क्या कहते हैं? मजरूर। और जार मजरूर क्या कहते हैं? मुतअल्लिक। और जिसके मुतअल्लिक होते हैं उसको क्या कहते हैं? मुतअल्लिक। और कितनी चीजों के मुतअल्लिक होते हैं? 8 चीजों के। अब तक हमने कितनी चीजें पढ़ी है? फेल, शिबे फेल और मस्दर। इंशाअल्लाह कल सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।